आप जो न्यामर करबग जी का छोटी बहन को शादी किया है, तो आप न्यामर करबग जी जो एमएलए है वो आपको पुश कर रहा है मिनिस्ट्रियल बर्ड को लेने के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूमर। ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं। योर फ्रेंड्स आर कॉलिंग यू एज किम जोंग, हाउ फार इट इज ट्रू? ये बच्चा लोग मजाक करता होगा मेरे पीछे। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम मिनपाक दोजी। वो उन्होंने कहा है, सर वी वांटेड टू नो द ट्रूथ इफ ऑनरेबल एमएलए न्यामर करबग सर इज सपोर्टिंग you to contest from 30th Alo West constituency if he is not sure if। और उसका एक और सवाल है कि from the reliable sources heard that you are also going to contest from BJP ticket, जबकि वहाँ already 2 primary members है BJP का। Do you have any confidence that you will get the BJP ticket of 30th Alo West constituency? If yes, then on what basis? There is a one question that is 30 crore. 30 crore you have already saved. You have already saved 30 crore to invest or utilize in your upcoming politics. How far it is true and how would you respond to this 30 crore reverse question? सवाल है from लिक्विसोरा। तो उन्होंने पूछा है कि टोपिन एडवोकेट और इंजीनियर तुमका बागरा हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर है 2024, अभी तो 2024 असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि टूटम वोटर्स जो डिवाइडेड हो रहा है? सो दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग दैट सिंस Topin sir is belong to Tutam clan, and so you are also belong to Tutam clan. So there is he being the legitimate voters, he has apprehension कि यदि 2 आएगा तो क्या वहाँ में क्लास डाइवर्जन होगा क्या? Hello viewers, welcome to the MPL News Channel Live, state leading digital news media. As it is already known to the viewers that the MPL News Channel Live is initiating a very good episode wherein all the existing candidates and aspiring candidates of various respective legislative assembly are being questioned by drawing all the opinion and questions from the various respective voters. So the episode has also organized, this is the 5th episode wherein for the first time we are going to draw questions from the respective voters. The MPL News believe that it is going to be a platform wherein the people's participation will be engaged and people's question will be asked to the concerned existing MLAs and contesting candidates. So Nyamo Ataji, welcome to the MPL News channel, and moreover welcome to this beautiful episode being initiated by the MPL News Channel Live. This is an episode called Know Your Candidate, where it aims to give people's participation to establish democratic setup. This program is sponsored by Advocate Mepe Atta, who is the former President of the Galo Students Union, and we are thankful for his sponsorship. And we also have a co-sponsor, that is Young Mind Institution. So with this we would like to straight up start this session. So with that, Mr. Nyamo Ataji, he is an entrepreneur, and before that let me give you the brief introduction of Mr. Nyamo Ataji. He has an engineer graduate and graduated from the BIT Misra Ranchi Jharkhand as a Bachelor of Engineer Electronic and Communication in the year 2008, and he is an young entrepreneur and have been running the most heard and prolific store, that is any store,
and which is stationed at Itanagar, Zero Point. Well, with this, he is also a person, needless to introduce. He has been actively participating in the various societal activities, and he has been actively participated in the community-based organization, that is Galo Welfare Society, and he has been participated in various students-oriented platforms, such as he has conducted mock interview, and beside that, Galo you were also the member secretary Galo Skilling Committee, wherein many Galo youth have participated, and that come out to be a very prolific product. With this, our Nyamu sir need no any introduction, but this was a brief introduction that we could come out. Well, with this, sir, we would go straight up to our question. हमारे सवाल है और साथ ही साथ में जो पब्लिक आपको वोट करेंगे, जो लेजिटिमेट वोटर्स है, उन लोगों के सवाल को भी आपको जवाब देना पड़ेगा. वो सभी सवालों को हम यहाँ लाए हैं. सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी as you are going to be the representative of your own concerned denizens. So before jumping into the straight question, sir, this is a question from my side. When I heard your this campaign, आपको देखा है कि आप बस्ती बस्ती पे गए हैं, आपके कंसर्न विलेजेस पे गई है, where you have interacted your old people, old citizens and many intellectuals as well in order to spread your manifestos and campaign. Since you are an entrepreneur and very interestingly in your Northeast departmental store, there are you have been employing more than hundreds of employees, so which is a kind of philanthropic act that you have been rendering. So what made you to jump into this political arena, sir? Well, first of all, जितने भी MPL न्यूज़ की व्यूअर्स है, मेरी तरफ से नमस्कार. जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम न्यामो अते है, मैं दरका विलेज से बिलोंग करता हूँ और इस बार 2024 में आलो वेस्ट का मैं भी एक कंटेस्टिंग एस्पायरिंग कैंडिडेट हूँ. ओके, आपका सवाल में जो पूछा, जो मेरे बारे में बताया, वेल थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, कि सब जानना चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स लाइन में क्यों गया. यस. ओके, मेरा बैकग्राउंड तो जैसे आपने बताया एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, लेकिन सबका लाइफ में एक ऐसा समय आता है, ऐसा आपको डिसीजन लेना पड़ता है जो हार्ड होता है, लेकिन ओवरऑल सबके लिए बेनिफिट होता है. मेरा ये बोलने का कारण है, जैसे कि एज ए प्राइवेट सिटीजन देयर इज ए लिमिटेशन. सबके पास लिमिटेशन है. मैं प्राइवेट बिजनेस करके अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज ऑलवेज ए लिमिटेशन कि आप अपनी तरफ से कितना करेंगे. लेकिन आप कुछ रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में पहुँचता है, जिससे आपके समाज में, आपके सोसाइटी में डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है. एंड आई थिंक जो हमारा ये विधायक का जो पोजीशन है, इस इफ़ेक्ट डायरेक्टली तो पीपल, उनके जो रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में अगर कोई बैठता है तो सब पीपल के लाइफ को टच कर सकता है. इन ए वे आप ये बोल सकते हैं, जैसे कि सिंपल एग्जांपल, मैं एक प्राइवेट सिटीजन हिसाब से अगर मैं अपने गांव में कुछ करना चाहूँगा, देयर इज ओनली लिमिटेशन. मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे कंट्रीब्यूशन भी कुछ करो, मनीटरी एक लिमिटेशन होगा, और जो गवर्नमेंट से भी होगा मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में पहुंचता है जिसका आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आपको पावर है, जिस चीज़ से आप समाज को चेंज कर सकता है, मेरा वही है कि अगर ऐसा कुछ पोजीशन में मुझे मेरा जो वोटर्स है, जो मेरा वेल विशर्स है, अगर वो मुझे इस पोजीशन में पहुंचाता है, तो आई विल बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम. मैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट लिंक होऊंगा और जो अपने समाज में है डायरेक्ट चेंज कर पाऊँगा. वो मेरा पावर रहेगा. मेरा मेन यही एम है, अपने समाज को सर्व करना एज ए इंडिविजुअल ना, और एज ए अगर मुझे उस लेवल में पहुंचता है तो उस हिसाब से. Well, thank you, sir. That's a very nice reply. You wanted to participate in, you wanted to be the representative because you have certain limitation when you are running or you are just a businessman. Yes. You wanted to be a representative so that you become the part and parcel of the government
to address the grievances of your own citizens. Yes. The most interesting question, and this is a rumor. So far as any questions are not being authenticated, this is considered as a rumor, which is known to all of the viewers. Well, sir, एक ये है rumors है, अफवाह है, कहता है कि आप जो न्यामर करबाग जो सिटिंग एमएलए है 27th लिरमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ये कह रहा है कि आप जो न्यामर करबाग जी का छोटी बहन को शादी किया है, तो आप न्यामर करबाग जी जो एमएलए है वो आपको पुश कर रहा है मिनिस्ट्रियल बर्ड को लेने के लिए, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूमर. ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि न्यामर करबाग आपको पुश कर रहा है, रिलेशन है. सिंपल चीज़ आदमी को समझना चाहिए. फैमिली रिलेशन अलग है. आपका फैमिली रिलेशन होता है, मैट्रिमोनियल रिलेशन है, वो किसके किसके साथ होगा. अगर कोई कैंडिडेट उठता है, ऐसा रिलेशन बना के जाएगा कि कोई मिनिस्टर से उनको जोड़ देगा, उसके बाद बोलेंगे कि वो मिनिस्टर आपको पुश कर रहा है. हाँ, न्यामर करबाग मेरा अपना फैमिली इमीडिएट है, मेरा उनका छोटी बहन को मैं लिया हूँ, तो ये तो सच है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ. और अगर उनका मिनिस्ट्रियल के लिए मुझे उठा रहा है कि 30 आलो वेस्ट से, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आप लोग देखिए, व्यूअर्स देखिए, आप लोग जज कीजिए. एज ए पॉलिटिशियन न्यामर करबाग क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या है, उनका अपना गलो समाज में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो कितने सालों से पॉलिटिक्स में है, वो देखिए. अगर उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है और वो एज ए पुराना के लिए ऑलरेडी आई थिंक सेकेंड टर्म एमएलए है, तो अगर वो होता है तो उनको अगर पब्लिक, अगर गवर्नमेंट अगर उनको मिनिस्ट्री में चांस देता है, वो उनका अपना मेरिट से मिला हुआ है. अगर मैं उठ जाता हूँ तो मेरे उठने से उनको मिनिस्ट्री मिलेगा, ये तो नहीं है. तो क्या मैं हार जाता हूँ तो क्या उनको मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा. उनका जो अपना कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक गवर्नमेंट लोग भी उनका कंट्रीब्यूशन देखेगा, उनका गलो समाज में उनका कंट्रीब्यूशन को देखेगा, उसके बाद उनको मिनिस्ट्री देना नहीं देना वो उनका बात है ना. लेकिन हाँ, अगर मेरा पर्सनली फैमिली रिलेशन को लेके कोई बोल रहा है कि न्यामर करबाग आपको ये उठा रहा है, वो उठा रहा है, फैमिली रिलेशन अलग है एंड आई थिंक पॉलिटिकल रिलेशन अलग है. मैं यही बोलना चाहूँगा. Okay, sir. Well, we will straight up switch to another question. That is, what are your long-term goals for your constituency, and how do you plan to work towards achieving those goals if elected? If elected, okay. Yes. ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, लेकिन यस, आई थिंक एवरी कैंडिडेट हैज़ ए विजन, देयर मैनिफेस्टो. मेरा प्रॉपरली अभी तक मैं बना के प्रिंट नहीं किया हूँ, लेकिन यस, मेरा ये बोलना चाहूँगा, एवरी विलेज है डिफरेंट प्रॉब्लम, हर एक गांव का अपना अपना इशू रहता है. तो मेरा अप्रोच भी यही रहेगा. पहला जो है, जैसे कि कोई भी एक विलेज को बोले, अभी मैं जब से मैंने अपना कैंपिंग शुरू किया हूँ तो काफ़ी विलेजेस में विजिट किया है, तो मैंने जब देखा कि हर एक विलेज का अपना इशू रह जाता है. किसी का, जैसे कि मैं दरका विलेज से बिलोंग करता हूँ, मैंने जितना कहा, पहला इशू रहता है विलेज का इंटरनल रोड. विलेज का इंटरनल रोड काफ़ी ख़राब है, तो वो पहला जैसे रहेगा. जैसे कि बेन बस्ती में मैं वहाँ विजिट किया, कैंपिंग नहीं किया लेकिन विजिट किया था, लेकिन वहाँ का इंटरनल रोड देखा तो अच्छा है. तो हर एक, मेरा बोलने का ये है, हर एक विलेजेस का अपना अपना डिफरेंट अप्रोच रहता है, डिफरेंट प्रॉब्लम रहता है, तो मैं उस हिसाब से करूँगा. एंड इन फ्यूचर मेरा क्या विजन है बोलने से, मेरा जो विज़न रहेगा यूथ ओरिएंटेड रहेगा. पहला मेरा जो प्रायोरिटी रहेगा यूथ को रहेगा, उसका सेकंड रहेगा ओल्ड एज, इन सेंस मतलब एजुकेशन रहेगा, हेल्थ सेक्शन रहेगा. अगर यूथ को मैं मोबिलाइज नहीं कर पाऊँ तो आज के दिन में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, सबको पता है. तो मेरा अप्रोच बेसिकली यूथ को एंगेज करने का रहेगा, ये मेरा पहला है. एंड अदर्स जो बोलेगा, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, काफ़ी इश्यूज़ वगैरह है, आप देखे जाओ तो काफ़ी रह जाएगा. लेकिन जो मेरा मेन चीज़ है यूथ ओरिएंटेड रहेगा. अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं यूथ लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगा. एम्प्लॉयमेंट में प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करूँगा. उसके बाद में एजुकेशन सेक्टर में, जैसे कि मैं हर जगह बोलता हूँ कि कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो मैं ये करूँगा कि आलो में भी अगर जितना भी होता है, स्पेशली जो ग्रेजुएट यूथ्स है, नॉट ओनली स्टेट लेवल एग्ज़ाम, सिर्फ स्टेट लेवल का APCS नहीं, APPSB नहीं,
आपका वो सब नहीं, उसके बाद भी जैसे कि सेंट्रल का यूपीएससी होता है, आपका एसएसए और शॉर्ट सर्विस वो होता है, और काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहता है, बैंक का पीओ का रहता है, सब में मेरा फोकस रहेगा कि यूथ को वहाँ में कैसे करके सेंट्रल जॉब भी दिलवाना है। Okay, sir, that's a nice thing. So, in a nutshell, your manifesto would be emphasizing on health sectors, road connectivity, and employment. Empowerment, youth empowerment. Youth empowerment. Well, sir, we have another question, that is, what is your opinion on the role of government in the society? नहीं, सी गवर्नमेंट का रोल जो है हर किसी के लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। गवर्नमेंट इज फॉर दी पीपल, Yes, बाय दी पीपल, आपका जो प्रेम्बल में लिखा है exactly. वो रह जाता है। तो गवर्नमेंट का जो रोल है हर किसी को टच करता है लाइफ को। तो पब्लिक को भी ऐसा होना है कि ऐसा गवर्नमेंट चुनना है जो पब्लिक के लिए करे, और आई थिंक पब्लिक चुनता भी है, लेकिन सबका प्रायोरिटीज होता है कि किस में जाऊँ। अभी जो गवर्नमेंट का अभी जिसने बोला कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इट इज़ ऑल बाय गवर्नमेंट। इसी में प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा रोल लेता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ओवरऑल आउटरीच होने के लिए, Okay. जैसे कि आपके देखिए कोई बहुत किनार का गांव है, अभी होता है कि उसमें आजकल जैसे कि हमारे एरिया में इशू रहता है, हर कोई मोबाइल पकड़ता है, हर कोई मोबाइल पकड़ता है, तो उसमें नेटवर्क इशू रह जाता है। तो Exactly. उसमें गवर्नमेंट का रोल आ जाता है कि वहाँ में प्रॉफिट बेसिस हो ना हो, लेकिन पब्लिक को नेटवर्क कनेक्टिविटी देना है। अगर कोई इंटीरियर में मान लीजिए तीन घर है, 4 घर है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है कि उनको वहाँ रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, चाहे उसमें 100 आदमी हो या 10 आदमी हो। तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट का ये रोल रहता है सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए, और कैसे करके सबको आगे लेके जाने के लिए ना। जी सर। सर, दिस इज फ्रॉम होगले ओरी। उसका सवाल है कि माई क्वेश्चन टू आसिन्यामो, why you chosen politics as your field of work? I think this is already answered. Well, we have his another second question, that is, do you think you are best among the rest of the contestant candidate from 30th Alo West Assembly constituency? I won't say कि I am the best, Yes. Okay. लेकिन एक ही को there will be only one position, one winner. I think all the candidates are the best. लेकिन पब्लिक का अप्रोच क्या है, पब्लिक किसको चुनेगा, ये इस डिपेंड्स अपॉन पब्लिक। अभी जैसे कि मान लीजिए जो मेरा अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट, हम ये नहीं बोले कि बेस्ट नहीं है, आई थिंक तीनों बेस्ट है, लेकिन बेस्ट में से भी कौन सा सबसे अच्छा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड इस डिपेंड्स अपॉन पब्लिक कि वो किसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मान के 30 आलो वेस्ट को रिप्रेजेंट करने का चांस देगा। जैसे कि कोई भी चीज़ में आप देखिए, जैसे कि धान खेती जब करता है, सिंपली हम लोग धान लगाता है, वहाँ से निकाल के मेन पेडी फील्ड में डालता है, तो जो होता है अच्छा वाला कोई आप निकाल के डालेगा ना पहले, तो इट डिपेंड्स अपॉन पीपल। तो ये पीपल का चॉइस है कि वो किसको वो करेगा। किसी को मेरा नैरेटिव अच्छा लगेगा, मेरा अप्रोच अच्छा लगेगा, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है उसको अच्छा लगेगा, तो कोई मुझे चुनेगा, कोई अदर कैंडिडेट को चुनेगा। लेकिन एट दी एंड सबसे हमारा ये डेमोक्रेसी का सबसे सुंदर चीज़ ये है कि मेजॉरिटी किसको डिसाइड करके भेजता है। तो आई थिंक इस डिपेंड्स अपॉन वोटर्स एंड पीपल ना, किसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानता है। Okay, sir, so you are drawing conclusion that among 3 contesting candidates, whoever wins, he will be known as the best of the best candidate. Yes, क्योंकि इट इज डिसाइडेड बाय द पीपल। मैं अपना आपको बेस्ट बोल के कितना भी पब्लिक में घूमूँ, मेन रोड में जाके चिल्लाऊँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो इट डिपेंड्स अपॉन पीपल कि वो वोटर्स किसको देखता है कि नहीं ये बेस्ट है, जो मेरा वेल विशर है वो हमको अच्छा बोलेगा, अदर कैंडिडेट का जो वेल विशर है उनको अच्छा बोलेगा, और जो बाकी कैंडिडेट हैं उनका वेल विशर उनको अच्छा बोलेगा। लेकिन एज ए मेजॉरिटी जो हमारा वोटर है उनको लगता है कि नहीं
इसको मौका दे के देखना है, ये हमारा सोसाइटी को लीड कर सकता है और अच्छा वे में। तो आई थिंक वो होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट। Okay, so the ultimate deciding will be made by the legitimate voters. यस। Okay, sir. We have now this question is from Mr. Gamo Ate, who is the Secretary Darka Alo Welfare Society. So उसका question है, what motivates you to become a leader, and how long you have been thinking of becoming an MLA? If you become an MLA, what will be your contribution towards the society, and how you will be different from other MLAs? वेल, गमू भाई को तुम जानता है। सी, कब से आप ये जो क्वेश्चन है कि आप कब से एमएलए बनने का सोच रहा था, जो Yes. आई विल से किसी कभी लाइफ में वैसे सोचा नहीं कि एक दिन हम ये करेगा। फैक्ट मतलब सच बोल रहा है, लेकिन लाइफ में सबका हम बोलते हैं कि ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको लगता है कि वो करने से बेटर होगा फॉर दी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अभी हमको जैसे कि अगर कोई मेरा इंटेंशन को अगर वोटर्स डाउट करेगा तो पब्लिकली हम बोल भी सकते हैं कि मेरा जो बेटर हाफ मेरा वाइफ है, उसका वोटर अभी तक स्टिल उसका अपना होम टाउन, अपना पेरेंटल उसमें है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं है। अगर मेरा इंटेंशन पहले से ऐसा होता कि हम बहुत साल से करना है तो पहले ही मेरा उनका वोटर को शिफ्ट कराता है। एज वोटर अगर हमको कोई पूछता है पब्लिक की आप क्यों करना चाहते हैं पॉलिटिक्स, मैंने पहले भी बोला, सी देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटली आप कितना करेगा, इन ए पोजीशन आके कितना करेगा। मैं जो पोजीशन में था, आई हैव एवरीथिंग बाय द गॉड, ग्रेस ऑफ द गॉड, मतलब मुझे सब कुछ दिया, मेरा पेरेंट्स ने भी मुझे सब कुछ दिया, और जो बिजनेस में भी मैं लाइफ में उतरा उसमें भी मुझे सक्सेस मिला। Exactly. कि उस सबका वेल विश का सबका विश था, मैं आगे भी गया। लेकिन एक समय के ऐसा समय आता है जब आप सोचना पड़ता है कि आप पब्लिक के लिए करना चाहते हैं ना नहीं। और जब मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं पब्लिक को सर्व करना चाहता हूँ, अपना सोसाइटी स्पेशली अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करना चाहता हूँ, तो ये डिसीजन हार्ड था, इजी डिसीजन नहीं था। बिकॉज अब कुछ भी ऐसा पब्लिक लाइफ में आता है, बहुत फैक्टर्स जब आपको इफ़ेक्ट करता है, इवन फैमिली को भी इफ़ेक्ट करता है, मेंटली भी आपको इफ़ेक्ट करता है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं ये डिसीजन लेके आ गया कि मैं पब्लिक को सर्व करूँगा, उस दिन के बाद मैं पब्लिक में ही रहूँगा। अभी मेरा जो होल लाइफ है, सिर्फ ये एक इलेक्शन नहीं, आगे भी हारो जीतो वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी के बाद में जब से मैं डिसीजन लिया कि नहीं, मैं पब्लिक सर्विस में आ गया, मेरा लाइफ लॉन्ग मैं पब्लिक का सेवा में ही रहूँगा। Okay, sir, here we have also attachment of one more question, that is, if you become an MLA, what will be your contribution toward the society, and how you will be different from other MLAs? We have two MLA contesting candidate, one is already existing. So what kind of different work would you be performing if you are elected as an MLA? आई थिंक इसका पहले भी जवाब दिया, लेकिन फिर से मैं वही बोलूँगा कि देखो, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच। कोई भी एक प्रॉब्लम का 2-3 सॉल्यूशन होता है। Okay. अभी एक कैंडिडेट का इसमें, जैसे कि अभी एज ए यूथ आ रहा है, तो मेरा फोकस उसमें ज़्यादा रहेगा। अभी अदर कैंडिडेट भी, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट आओ और एग्जिस्टिंग जो हमारा कैंडिडेट है उनसे पहले भी जो था, वैसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। Okay. सोसाइटी के लिए सबने काम किया। Okay. जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है, सब ने काम किया। ये बोलना गलत होगा कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन अप्रोच। जैसे कि मेरा अप्रोच रहेगा, हम बेसिकली यूथ ओरिएंटेड बोला, चलो अभी मैं यूथ ओरिएंटेड है तो यूथ का क्या है। अभी मैंने ऐसे जस्ट एग्जांपल दूंगा, मैंने कितना विलेजेस विजिट किया, वहाँ में जाके देखा तो यूथ के लिए कुछ करने के लिए है नहीं। वो लोग खेती जाता है, डेली अपना लेबर करता है, अपना बागान गार्डनिंग करता है, शाम को उसके आने के बाद में करने का कुछ नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ नहीं है, अब मेंटल रिक्रिएशन के लिए कुछ भी नहीं है।
तो जस्ट मैंने एक सोचा कि चलिए अगर मान लीजिए कोई विलेजेस में अच्छा यूथ का है तो वहाँ एक फुटसल ग्राउंड बना देते हैं जस्ट। और आजकल ईटानगर में आप देखिए हर कोई फुटसल भी नहीं खेल सकता है, फुटबॉल जो आजकल बहुत पॉपुलर है। यस सर, एग्जैक्टली। आप देखिए वॉलीबॉल का ग्राउंड भी बना सकते हैं, ईटानगर में काफ़ी पॉपुलर अभी हो रहा है वॉलीबॉल मिनी ग्राउंड। तो जैसे कि वो सब होता है, होने से क्या होगा कि आपका जो विलेज लेवल का यूथ है, मिड यूथ लेवल और एकदम यूथ लोग उसमें एंगेज रहेगा, उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। तो उस तरह से क्या होगा कि उनका जो एक होता है कि ड्रग्स हो या एल्कोहल हो, उनसे उनका दिमाग डाइवर्ट रहेगा। उनको लगे कि नहीं शाम हो गया, अपना खेती करके आ गया, शाम को फुटबॉल खेलना है दोस्तों के साथ। लेकिन वो भी गवर्नमेंट एडेड होना है। अगर जैसे कि देखिए प्राइवेट एडेड होगा, क्या होता है कि इट विल बी कॉस्टली फॉर देम, एफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये जस्ट एक अप्रोच है मेरा, डिफरेंस जो अदर कैंडिडेट से बोलने का। तो उनका भी कुछ आइडियाज़ होगा, मेरा ये सब आइडियाज़ है जो प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ। अभी मैं बार बार कोचिंग का बोलता हूँ, हर समय कोचिंग का जो अप्रोच है। अभी आप खुद देखिए हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट का इतना इशू है, ईटानगर आता है, प्राइवेटली काम करता है, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है। तो चलिए सिर्फ अपना स्टेट लेवल में क्यों गवर्नमेंट जॉब को ट्राई करेंगे? यस, आप सेंट्रल लेवल में भी ट्राई कीजिए, प्राइवेट कंपनी में भी ट्राई कीजिए। कितना प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ हैं, वो आजकल लोकल यूथ को एम्प्लॉय भी कर रहा है। यस, उसका मैं एक वो बनूंगा, मीडियम बनूंगा, अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, वो है मेरा अप्रोच। Okay, sir. Yeah, that is undeniable fact that you are also owning and running a One Northeast library. Yes, That library has been accessible to all the people who could not afford. So you have been rendering a very noble service. So it is also undeniable fact that many Galo youths have are the beneficiaries and got benefited, and it is also a fact that they are also recruited in various prestigious posts, and they are already discharging in government sector. So this is also your contribution, sir. Yeah. Well, with this we now coming to a very interesting question, sir. In a democracy setup where the representative are being elected by the voters, so one should not endorse communal politics, and one should not indulge in money culture, which is well known to all of us. हर सभी को मालूम है, even villagers, intellectuals, all of us is even spreading such news, such campaign. तो सर यहाँ आपका एक सवाल है फ्रॉम लिक्की सोरा। तो उन्होंने पूछा है कि तोपिन एडवोकेट और इंजीनियर तुमका बागरा हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर है 2024, अभी तो 2024 असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि टूटम वोटर्स जो डिवाइडेड हो रहा है? सो दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग दैट सिंस Topin sir is belong to Tutam clan, and so you are also belong to Tutam clan. So there is he being the legitimate voters, he has apprehension कि यदि दो आएगा तो क्या वहाँ में कम्युनल क्लास डाइवर्जन होगा, क्या क्लैन डाइवर्जन? ओके, पहला तो मैं ये सबसे पहले बोलना चाहूँगा, पॉलिटिक्स में कोई क्लैनिज्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, इसमें कोई कम्युनलिज्म नहीं होता है। पॉलिटिक्स इज़ ओपन टू ऑल। आई थिंक वोटर्स भी हमारे यहाँ इतना वो नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगी कि किसको देना है नहीं देना है, एंड क्लैनिज्म हमारे यहाँ होता ही नहीं, और मैं भी मानता ही नहीं हूँ पहला। हाँ, लेकिन जो उनका सवाल है, हाँ नॉर्मल पब्लिक को रह सकता है। आई एम ऑल्सो एटर, तोपिन भी एटर है। yes. तो उनका लगता है कि अगर दो एटर होता है तो मैं भी तुतम क्लैन से बिलोंग करता हूँ कि वोट डिवाइड हो सकता है ना, ये नॉर्मल किसी को भी लग सकता है। लेकिन इस अप टू वोटर्स टू डिसाइड ना, अगर 3 कैंडिडेट उठो, 4 कैंडिडेट उठो, 5 कैंडिडेट उठो, इस अपॉन वोटर्स टू डिसाइड कि कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है, उनको वो चुनेगा। और पर्टिकुलर ये केस में अगर क्लैनिज्म में अगर कोई बोलता है तो मैं तो गलत बोलूँगा, लेकिन देखिए ऐसा है, अब हर इलेक्शन अगर आप क्लैनिज्म में रहेगा तो लास्ट इलेक्शन को देखिए। लास्ट इलेक्शन में आई थिंक अस्तोपिन कैंडिडेट था,
उसके बाद में आसन्यादल लोया भी कैंडिडेट था, बगरा सर ऑनरेबल मिनिस्टर जो उस समय भी 2019 में वो कंटेस्ट कर रहा था, और यमन बगरा से वो भी कर रहा था। तो एट दैट टाइम क्या था, तूतम का एक ही कैंडिडेट था, उल्टा बगरा साइड से मोमो साइड से 2 कैंडिडेट था, तो क्यों हार गया? तो आई थिंक उल्टा वोटर्स ने रिजेक्ट किया ना। उससे पहले भी देखिए 2014 में हमारा एक्स MLA अबो गादम वो एक ऐसा था, और फिर बगरा सर था, उस समय भी बगरा सर निकला। आई थिंक इट्स अप टू वोटर्स टू डिसाइड। वोटर डिसाइड करता है कि उस समय कौन सा बेस्ट कैंडिडेट होता है। और ये तो हमारा यहाँ उल्टा एक लिविंग एग्जाम्पल है कि तूतम अगर कोई क्लेम बोलते हैं कि बड़ा है छोटा है, लेकिन देखिए बगरा सर को सबने वोट दिया, और मेजॉरिटी आई थिंक अभी भी मेजॉरिटी उनका पोजीशन अभी भी बहुत तूतम उनके साथ है। तो इस अपन पीपल चॉइस, तो हमारे यहाँ मेरे हिसाब से तो कोई क्लेनिज्म नहीं है, और उल्टा पब्लिक लोग सपोर्ट करना चाहिए कि कितना भी कैंडिडेट आओ, जितना कैंडिडेट आएगा उससे अच्छा कैंडिडेट चुनो ना। अगर हमारे यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है, देन वी हैव टू थिंक कि हमारा सोसाइटी ऐसा समय आ गया कि अच्छा कैंडिडेट ही नहीं निकल रहा है। मैं तो यही बोलूँगा। यस सर। सर इन ए नटसेल यू आर ट्राइंग टू से कि आप 30 आलो वेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी के विधायक बनना चाहते हैं, सिर्फ तूतम के लिए नहीं, फॉर ऑल द डेनिजन्स ऑफ 30 आलो वेस्ट कंस्टिट्यूंसी। यस, आई थिंक ऑल द कैंडिडेट ये बात को एग्री करेगा, मे भी सिर्फ में सब। ओके सर। सर नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स अ काइंड ऑफ आई वुड से कॉमेडी क्वेश्चन। सर आपका ये है कि आपको आपका यूथ फ्रेंड्स, since you are a youth leader and you have many friends, youth friends, और आपको आपका यूथ फ्रेंड्स और आपका वेल विशर्स लोग किम जोंग बोल के बुलाता है, ये बात कितना सच है? योर फ्रेंड्स आर कॉलिंग यू एज किम जोंग, हाउ फार इट इज ट्रू? ये बच्चा लोग मजाक करता होगा मेरे पीछे, मेरा सामने तो बोला नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई मेरा रिजेंबल तो उसको देख के बोलते हैं तो भी ठीक है, लेकिन उनका डिक्टेटरशिप को देख के नहीं बोल देते ठीक है, क्योंकि मजाक में किम बोलो वो तो एक ही है डिक्टेटरशिप लीडर। तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन यस अगर आपको सोसाइटी को आगे ले जाना है, आपको हार्ड डिसीजन भी लेना पड़ता है, इसलिए लीडर को स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाना है, ऐसा हार्ड डिसीजन लेना होगा जो हर किसी को पसंद नहीं होगा। एट दैट टाइम मेनी पीपल विल बोलेगा कि ये तो देखो अपना मर्जी से कर रहे हैं, किसी का वो नहीं सुनते, लेकिन पर अगर वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में है तब आपको हार्ड डिसीजन लेके डिक्टेटरशिप जैसा भी काम करना होगा। लेकिन पर्सनली आई डोंट एंडोर्स डिक्टेटरशिप, और हमारा जो डेमोक्रेसी इतना ब्यूटीफुल है, कभी डिक्टेटरशिप आने नहीं देगा। और मेरा वेल विशर लोग मेरा किम नाम रख ही दिया, तो बाद में ब्रैकेट में किम भी डाल लेगा। ओके सो सर, ओके यू आर वेरी मच वोकल अबाउट इट, यू आर सेइंग कि किम जोंग का जैसे अपियरेंस तो हो सकता है, बट यू विल नॉट वेलकम और डिस्चार्ज एनी एक्ट विच विल रिसेंबल टू डिक्टेटरशिप। ओके वेल दिस वाज अ वेरी फनी क्वेश्चंस। वेल सर नाउ वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम दोली बागरा। उसका सवाल ये है कि contesting candidate always talk about Northeast any library. Is it really exist? If yes, where? And would it for long political motive to impress voters? So here, sir, the Doli Bagra is trying to ask you question कि न्यामो जो contesting candidate है वो हमेशा एनी लाइब्रेरी के ऊपर बात करता है, तो हमेशा एनी लाइब्रेरी के ऊपर बात करता है, क्या ये लाइब्रेरी सच में एग्जिस्ट है? और साथ ही साथ में है तो अगर कहा है, और क्या ये नोटिस जो लाइब्रेरी है क्या ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए आप रन कर रहा है? ये है उसका सीधा सवाल दोली बागरा का। ओके, दिस इज़ ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैं जब कहीं भी जाता हूँ, कोई भी विलेजेस में जाता हूँ, कोई भी यूथ को
इंटरेक्शन करता हूँ तो आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन एनी लाइब्रेरी। क्यों बोलने से ये जो मेरा एक हर चीज़ के पीछे मैं बोलता हूँ कि कुछ कहानी होता है। एनी लाइब्रेरी को अगर कोई पॉलिटिकली बोलता है तो आई विल से ऐसा मत बोलिए, क्योंकि वो मेरा इंटेंशन को ही गलत प्रूव कर देगा। मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था कि आई विल यूज़ एनी लाइब्रेरी एज ए पॉलिटिकल टूल। इसका भी कुछ कहानी है। सी मेरा भी ऐसा था 2014 में मैंने भी APCS का मेंस दिया था। एट दैट टाइम अगेन पेपर लीकेज का कहानी आ गया। पेपर लीकेज हो गया तो हमने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, टेनिस कोर्ट में धरना भी बैठा था। हमारे यहाँ काफ़ी यूथ लीडर्स भी आगे आए थे और क्या था फास्टिंग भी बैठा था। उजुम हमारा ही फ्रेंड था तो काफ़ी रिफॉर्म भी लाया। एट दैट टाइम मुझे जब मैं भी कुछ तैयारी कर रहा था पढ़ाई का, इन ईटानगर देयर वाज नॉट इन्वायरमेंट, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं था जहाँ के यूथ गैदर्स होके पढ़ पाओ, आइडियाज़ एक्सचेंज करो, डिस्कस करो कोई टॉपिक के ऊपर। तो वेल हम फॉर्चुनेट थे कि मेरा फैमिली ने सपोर्ट किया। तो मैंने अपने फादर को जस्ट एक बार बोल के देखा था कि अरे ईटानगर में घर में आके पढ़ने से क्या होता है कि दोस्त लोग आएगा घर में तुरंत पढ़ेगा, उसके बाद क्या होता है कि बात शुरू हो जाता है, खाना बनाओ वो बनाओ, ऐसा हो जाता है तो टाइम पास होता है। लेकिन हम लोग को प्रॉपर एक इन्वायरमेंट चाहिए था। तब मैंने पिताजी को बोला कि पीछे में थोड़ा जगह है, अगर आप उसको अलाउ करता है तो टेबल वेबल डाल के थोड़ा बुक्स रख के जस्ट हम लोग का यूथ का एक गैदरिंग करेगा, शाम को आएगा, सब डिस्कस करेगा, कोई टॉपिक को लेके पढ़ेगा, आइडियाज़ एक्सचेंज करेगा। तो पिताजी ने बोला कि चलो क्या है करो, उसमें क्या है, जगह तो है। तो मैंने वो बोल के शुरू किया। तो उसमें इनिशियली थोड़ा टेबल वेबल डाला, किताब डाला, बुक्स वगैरह डाला। तो उसके बाद में जो भी मेरा फ्रेंड्स था हम लोग शाम को आते थे, डिस्कशन करते थे, पढ़ाई करते थे, आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे। वैसा ऐसा होके वो रह गया। तो आई थिंक 2015 का बात है ये। तब जाके मैंने बोला कि अरे जब ये ऑलरेडी है तो मैं इसको लाइब्रेरी बना देता हूँ, इतना बुक्स तो है ही। तब पिताजी बोले वो भी ठीक है चलो। तब काफ़ी लोगों ने हेल्प किया, काफ़ी लोगों ने बुक भी डोनेट किया। उसके बाद ये एनी लाइब्रेरी का कंसेप्ट आया। उसके बाद में जब होते गया, काफ़ी लोग आते गए, तब मुझे लगा कि चलो जब ये हो ही रहा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया और काफ़ी लोग मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेनिफिट भी मिला और काफ़ी लोग ऑफिसर भी बने। तो ये एनी लाइब्रेरी का कहानी है। तो आई थिंक 2016 से शुरू हुआ। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कोई इसको पॉलिटिकल मोटिव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। एंड अभी भी एग्जिस्टिंग है। उल्टा मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आपका कैमरा में बाद में उसको विजिट करके जस्ट एक विजुअल ले लीजिए, ताकि पब्लिक का भी डाउट क्लियर हो कि कहाँ में है वो एनी लाइब्रेरी, कहाँ पर है। तो एंड आप जब वीडियो दिखाएंगे तो ये भी दिखा दीजिए कि अभी भी एग्जिस्ट है एंड कोई भी आके इसमें पढ़ सकता है। इस ओपन फॉर ऑल, कोई फ़ी नहीं है। बुक्स वगैरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है। आप सुबह आइए, आराम से पढ़िए। घर में जिसको पढ़ने का रूम दिक्कत होता है यहाँ आके पढ़िए, शाम को आराम से जा सकता है। तो ये है एनी लाइब्रेरी का। ओके सर, यू आर देन आउटराइटली रिजेक्टिंग कि नॉर्थ ईस्ट लाइब्रेरी जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होके रन नहीं किया है। आपका सोल इंटेंशन ये है कि एक सोशल सर्विस रेंडर करे जो नीडी पीपल को, एंड इट हैज़ टर्न आउट टू बी ए वेरी प्रोलिफिक आउटकम. Well, sir, I think this is the ultimate question being asked by your own legitimate voters. Well, we have now questions from Minpak Doji. वो उन्होंने कहा है, Sir, we wanted to know the truth. If Honorable MLA Nyamar Karbak sir is supporting you to contest from 30th Alo West constituency, if he is not sure, if. और उसका एक और सवाल है कि फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज हर्ड दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम बीजेपी टिकट, जबकि वहाँ ऑलरेडी 2 प्राइमरी मेंबर्स है बीजेपी का. डू यू हैव एनी कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेट द बीजेपी टिकट ऑफ 30th आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी? इफ यस, देन ऑन व्हाट बेसिस? पहला तो जो
सब में बार बार पूछ रहा है कि न्यावर करबग आपको उठा रहा है ना नहीं, ये है। मैं तो हर समय यही बोलता हूँ, हाँ अभी उठा रहा है नहीं उठा रहा है उनका, आप उनको भी पूछिए, पहले भी पूछा है, आई थिंक उन्होंने भी डायरेक्ट बोला कि नो। मैं भी वही बोलता हूँ, पॉलिटिक्स और फैमिली को अलग रखिए। मुझे उठा रहा है तो मैं अगर पब्लिक को बोलना चाहूँगा तो मैं खुद बोलूँगा कि मैं खुद उतरा हूँ, मेरा पब्लिक मुझे उठा रहा है, मेरा वेल विशर लोग हमको बोल रहे हैं कि कंट्रीब्यूट करो। मैं खुद फोरफ्रंट में आके बोल रहा हूँ कि मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ। आप लोग मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मेरे बारे जानिए, एक बार मुझे मौका दीजिए कि मैं कैसा आदमी हूँ, मेरा सोशल कंट्रीब्यूशन है ना नहीं ना। ये नहीं कि कोई आपको न्यामर बोल के उठा रहा है। आई थिंक मैं तो व्यूअर्स से यही बोलूँगा कि वैसा वो नहीं है। एज ए फैमिली ओबियसली वो हमको सपोर्ट करेगा, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन क्योंकि हर देखिए अभी जैसे कि बीजेपी का आपने बोला कि बीजेपी टिकट में, आई थिंक बीजेपी का अपना एक मैकेनिज्म है, एक नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ा रूलिंग पार्टी है, उनका अपना मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से वो कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। ओबियसली मैं भी एज ए कैंडिडेट मांग के देखूंगा, लेकिन देना नहीं देना उनका वो है, और उनका बाकी मेंबर्स भी मांगे कि दो ऑलरेडी कैंडिडेट क्यों, आई थिंक और भी कैंडिडेट अंदर से मांग रहा है बीजेपी टिकट का। इट इज़ अप टू द पार्टी टू डिसाइड कि किसको टिकट देता है ना नहीं। लेकिन माई वन थिंग इज मेरा क्लियर है, जब मुझे पॉलिटिक्स में आ गया हूँ मैं कॉन्टेस्ट करूँगा। किस टिकट से करता है वो तो भक्ति बताएगा, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है। अभी जब मैं एज ए यूथ एज ए कैंडिडेट आके कर रहा हूँ, मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि मुझे कंटेस्ट करना है 2024 इलेक्शन में। किस पार्टी से करता है, किससे होता है, इट विल डिसाइड ऑन लेटर स्टेज। Okay, you are all set. You have pulled up your socks to battle into this political arena, whatever the circumstances may be, irrespective of political party affiliation. Yes. Okay, sir. Now this is also a rumors, but this question is very interesting. So, according to the rumor that we have heard or received to this media channel, there is a one question that is 30 crore. 30 crore you have already saved. You have already saved 30 crore to invest or utilize in your upcoming politics. How far it is true, and how would you respond to this 30 crore rumors question? सी पॉलिटिक्स एज ए कैंडिडेट, जब मैं पॉलिटिक्स में यूथ कैंडिडेट बोल के आ रहा हूँ, फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी मैं ट्राई करूँगा मनी कल्चर इन आवर सोसाइटी। मनी कल्चर को कोई तो चेंजेस लाना है। इस एन ओपन सेक्रेट, सबको पता है विदाउट मनी कल्चर हम लोग का सोसाइटी में इलेक्शन होता नहीं है। लेकिन चेंजेस कौन लाएगा? हर कोई बोलता है कि पहले से चल के आ रहा है, हमारे यहाँ तो इलेक्शन में पैसा ही चलता है। आई एम द कैंडिडेट, मैं ट्राई कर रहा हूँ मनी कल्चर को लेके नहीं आऊँगा। और अगर कोई बोलता है कि 30 करोड़ लेके आया, इतना पैसा तो हम लाइफ में नहीं देखा है, आपको 1-2 करोड़ भी दिखा तो मेरे लिए बहुत है, इतना भी मैं नहीं देखा। यस, लेकिन क्यों नहीं, मैं रिफॉर्म के लिए आया हूँ, मैं चेंजेस लाना चाहता हूँ अपना सोसाइटी में। तो मेरा तो फर्स्ट ये रहेगा कि मनी कल्चर को बंद करना है, और वो हमसे शुरू होगा। मैं ये शुरू करूँगा, और उसमें साथ देने के लिए मुझे वोटर्स का साथ चाहिए, वेल विशर का साथ चाहिए। पब्लिक मुझे साथ देगा, ऑटोमेटिक मनी कल्चर बंद होगा। मैं तो उस सवाल में यही बोलना चाहूँगा। ओके सर, 30 करोड़ जो मनी आप इलेक्शन के लिए तो रखा नहीं है, तो whereas you will be striving to eradicate this money culture in politics. Well sir, we have another question, that is, what is your contribution so far toward the society? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी को अब तक? सी आई थिंक एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड फॉर सोसाइटी। किसी का कोई ज़्यादा बोलेगा, किसी का कम बोलेगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मेरा भी कुछ कुछ है। इन्हें से अगर मैं बोलता हूँ तो पब्लिक बोलेगा कि खुद बोल रहा है। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल, इन 2020 गालो वेलफेयर सोसाइटी मुझे यूथ सेक्रेटरी में अपॉइंट किया था। एग्जैक्टली। मुझे एक मौका दिया
कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए। Yes. तो उसका अपॉर्चुनिटी को मैं लेते हुए उस समय जब मेरा टेन्योर में था 2020 to 22, Yes, sir. तो मुझे एक बार मौका दिया था कि आप ये मॉक इंटरव्यू Yeah, yes. फॉर गलो कैंडिडेट्स जो एपीसी स्पेशली एपीसीएस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हुआ है उनके लिए मॉक इंटरव्यू करने के लिए। Yes, sir. तो मैंने सोचा कि चलो हर साल कोई ना कोई तो करता है, तो ये बार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। लेकिन हर समय मैं बोलता हूँ ना कि आपका अप्रोच कैसे रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो हर बार तो जनरल में क्या करता है, मॉक इंटरव्यू करता है कि रूम में कैंडिडेट को बुलाता है, सीनियर ऑफिसर रिसोर्स पर्सन आता है, वो लोग एक मॉक इंटरव्यू लेता है, कैंडिडेट को फीडबैक देता है। मैंने सोचा कि नहीं, ये सिस्टम तो चलो पहले से है, Okay. मैं क्या डिफरेंट करूँ। तो मैंने क्या किया, 3 फेज़ में किया। Okay. तो पहले जितना भी गलो कैंडिडेट्स है जो एपीसीएस के इंटरव्यू में क्वालिफाइड हुआ, उन लोगों को Okay. मैंने जस्ट एक जनरल डिस्कशन के लिए बुलाया। जनरल डिस्कशन में बुलाया, उसके बाद में रिसोर्स पर्सन बुलाया जो हमारे वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं। Okay. उन्होंने उनको जनरल डिस्कस किया, तो उनका क्या कमी है, क्या फीडबैक्स है, उन्होंने बताया इन ए जनरल वे। Okay. फिर सेकेंड फेज में मैंने क्या किया कि 1-on-1 इंटरेक्शन कराया, Okay. Face to face. फेस टू फेस रिसोर्स पर्सन के साथ कैंडिडेट को। तो उनका क्या कमी है वो रिसोर्स पर्सन पर्टिकुलर उनको बताया। Okay. जैसे कि सिंपली आपका ये बोलने का अप्रोच ये है, आपका ये फिजिकल अपीयरेंस ये है, Okay. आप ये ड्रेसिंग करके आओ, अगर आपको कोई पूछता है तो ऐसे करो। तो लास्ट 3rd स्टेज में मैंने क्या किया, प्रॉपर मॉक इंटरव्यू कराया, हमने टेबल सेटअप कराया, 3 रिसोर्स पर्सन लाया, Okay. पूरा ऐसा इन्वायरमेंट कराया एंड मोबाइल रिकॉर्डिंग भी कराया, ताकि कैंडिडेट को उसका क्या गलती हुआ बाद में Okay. Rectify रेक्टिफाई कर करने के Okay. लिए। तो ये 3 स्टेजेस में मैंने कराया। तो आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनका मिलना जो सक्सेस होना में मेरा कुछ वो है, लेकिन आई थिंक दे हैव बेनिफिटेड। तो स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे बोला कि आपका जो ये अप्रोच था ये अच्छा रहा। तो मेरा बोलने का ये है कि ये भी एक मेरा कंट्रीब्यूशन है, पीपल उसको अदर सेंस में भी ले सकते हैं। Okay. लेकिन एज ए यूथ सेक्रेटरी मुझे और एक मौका मिला, हमने स्किलिंग गलो कराया, Yeah. स्किलिंग गलो प्रोग्राम कराया। हमने 3 उसको प्रोफेशन को चुना, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, Yes, sir. बेकिंग हो गया, टेलरिंग हो गया। Yes, sir. तो वहाँ में जितने भी गालों का यूथ है, हमने एप्लीकेशन मंगाया। जो यूथ को अगर टेलरिंग करना चाहता है उनको टेलरिंग में किया, जिसको बेकिंग इंटरेस्ट है बेकिंग इंटरेस्ट किया, और जिसको हैंडीक्राफ्ट में है हैंडीक्राफ्ट में किया। तो वेल स्पॉन्सर बाय अगर गलो सोसाइटी, Yeah. उनको मैंने किया। आज तक कोई जो स्पेशली बेकिंग का जो है अपना दुकान भी खोल के Okay. रखा हुआ है। तो ये नहीं बोलना कि मैंने कराया, लेकिन ये इनिशिएटिव हम लोग का भी है। उसी तरह यूथ सेक्रेटरी होते समय मुझे और एक मौका मिला, जैसे कि लाइब्रेरी मूवमेंट। तो हमारा जो उस समय का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के गाइडेंस में हमने लाइब्रेरी मूवमेंट कराया। जितना गलो इनहिबिटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, एरिया है, उसमें जितना भी हाई सेकेंडरी है, उसमें हमने किताब गलो की तरफ से, पूरा वेल विशर की तरफ से बुक्स भी डोनेट किया। Okay. That's a great achievement. तो ये भी एक मतलब कंट्रीब्यूशन अगर बोला जाए तो। उसके बाद अगर मेरा कंट्रीब्यूशन बोलता है तो इन ए वे ये बोलना गलत लगेगा, लेकिन आदमी बोले कि मिसयूज़ भी कर बोल रहा है अभी। लेकिन देखिए, मेरा एक एनी डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके आगे में मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ। जिस किसी का भी डोनेशन ड्राइव चलता है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर गलो बेल्ट, पूरा अरुणाचल से Okay. जिस किसी का भी पेशेंट्स का कभी नीड होता है तो उसको हम लोग अलाउ करता है। तो वह हमें पब्लिक चाहे अपने तरफ से जितना देना है वो दे सकता है। आई थिंक इन ए वे ये भी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, ये भी रह जाता है। और अपना सोसाइटी में तो मेरा रहता ही है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जितना भी यूथ मिलता है सबको मैं इंकरेज करता हूँ। मेरे पास जो भी आता है मैं उसको गाइड करता हूँ, कभी मिसलीड नहीं करता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बोलने से एनी लाइब्रेरी, जो मैं पहले भी डिटेल में डिस्कस Okay. कर चुका हूँ। सर, ये एनी लाइब्रेरी, एनी डिपार्टमेंटल स्टोर से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है। सबसे आगे तो मुझे भी कंफ्यूज है, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त तो कहते हैं कि एनी स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर।
and so many of my friends using this nomenclature any. तो सर आप ही बता दीजिए any stands for Nyamo है ना any stand for like I have been saying note is departmental store. सर आपसे क्लैरिफाई चाहेंगे हम. ये ऐसा कुछ वो नहीं है. एनी का जैसे कि आप कोई बिजनेस नाम देते हैं, फर्म का नाम देते हैं, तो आपको कुछ लिखना पड़ता है. तो उसमें मेरा NE डिपार्टमेंटल स्टोर बोल के है. एनी लाइब्रेरी में उस फर्म से बिजनेस करता हूँ. तो एनी जो है उस स्टैंड फॉर नथिंग कुछ भी नहीं है. लेकिन पीपल सब एज्यूम करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या न्यामो होते हैं, लेकिन इज जस्ट एनी. तो लेकिन हाँ, इनिशियल देने का भी रीज़न है. एनी नॉर्थ ईस्ट बोलने से तो अभी बोला जाए तो मैं ईटानगर में सिर्फ क्यों बिजनेस करूँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट में करूँगा, पूरा इंडिया में करूँगा. और अगर कोई न्यामो होते का नाम से भी बोलते हैं तो वो भी कोई बात नहीं है. तो इट्स जस्ट एनी. Okay, sir. It is just any. There is no such notice departmental store, Nyamu at departmental store. Any. So one can draw any nomenclature like I have made it. It's up to them. Okay. Then I think whoever calls it notice departmental store, Nyamu at, so there is no such problem issue. Okay. Yeah. Sir, we have another question. Since during our interaction, you are emphasizing more on empowerment of youth. So, how do you illustrate on empowering the youth from your side, sir? यूथ मैं हर समय यूथ को करना है बोलता हूँ. देयर इज ए रीजन. सी, अगर आज के जो हमारे समय में काफ़ी यूथ का इश्यूज रह जाता है. इन ए वे आप देखो, कोई यूथ होता है, यूथ जब हम यूथ बोलते हैं, उनका ग्रेजुएट हाई स्कूल किया, उसके बाद में ग्रेजुएट हुआ. वो ग्रेजुएट होने के बाद और उनको जॉब मिलने में कितना ईयर्स का गैप है, ये हमें समझना है. आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है. क्योंकि आप देखिए, कोई स्टूडेंट होता है, ग्रेजुएट हो जाता है 22 ईयर्स, 21, कोई 23 अप्रोक्स. लेकिन उनको कोई गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलता है. कब मिलता है? आई थिंक आई विल से 30 के बाद ही. कोई होता है डायरेक्ट मिलता है. उनको पढ़ के, उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर करके 35 ईयर्स तक भी जाता है, 37 ईयर्स तक भी कम्पिटिटिव. तो जो यूथ का एकदम प्राइम एज है, प्राइम एज, वो हम लोग का लॉस्ट हो रहा है. यूथ का भी लॉस्ट हो रहा है. तो आई थिंक वो एज को हम लोग मैक्सिमम टाइम में यूटिलाइज कर सकना चाहिए. इसलिए मैं जब भी यूथ को बोलता हूँ कि यूथ एम्पावरमेंट, यूथ होना चाहिए. आई थिंक इन ए पॉलिटिकल वे में अगर आप बोला जाए, आज के दिन में आप देखिए, यूथ को मैं बोलता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 18 ईयर्स दिया हुआ है वोटिंग राइट के लिए, लेकिन हमारा यूथ अभी तक खुद डिसीजन नहीं ले पाता है कि किसको वोट दो. यदि यूथ कैंडिडेट मैं बोलूँगा कि आप दो, बहुत फैक्टर्स रह जाता है. यूथ डिसाइड करेगा मुझे वोट देने के लिए, लेकिन उनका पेरेंट्स बोलेगा आप इसको दो, कोई उनको बोलेगा आप ये पार्टी को दो, कोई ये देगा. तो देयर इज यूथ जो है हमारा कंक्रीट डिसीजन नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि वो खुद स्टैंड अप नहीं कर पा रहे. और यूथ जब तक खुद स्टैंड अप नहीं करेगा, तब तक आई थिंक सोसाइटी को आगे लेके नहीं जा पाएगा. उल्टा पेरेंट्स वेल विशर लुक से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग यूथ का साथ दीजिए. यूथ का अगर मेंटेलिटी कैसा है, क्योंकि हमारा फ्यूचर यूथ है. सब बोलते हैं कि फ्यूचर यूथ है, लेकिन उनका जो डिसीजन मेकिंग में है उनको इफेक्ट होता है. जस्ट सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, ग्रेजुएट होता है. हमारे यहाँ का सिंपल माइंडसेट क्या है? कॉलेज पास हो गया, जाओ ईटानगर जाओ, दिल्ली जाओ, कोचिंग करो, एग्ज़ाम गवर्नमेंट नौकरी दो. कोई पेरेंट्स ये नहीं बोलते कि कोई यूथ अगर बिजनेस करेगा, बोलते थे बिजनेस बाद में होगा ना, पहले तुम एग्जाम तो दो. ओके, वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट. यूथ को भी चेंज करना है, पेरेंट्स को भी चेंज करना है. अगर कोई जैसे कि मान लो प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना चाहता है, 22 ईयर्स के बाद, 23 ईयर्स के बाद में नहीं खेल पाएगा. अगर उनको प्रोफेशनली फुटबॉल खेलना है, अब तक 10 ईयर्स 9 उससे सिखाना है. किसी को डांस करना है 8-9 ईयर्स से, हमें उससे पहले से ही हमें वो देना चाहिए. तो आई थिंक पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज होना पड़ेगा यूथ के लिए. और अगर यूथ कुछ करना चाहता है, आई थिंक पेरेंट्स भी उनको एंकरेज करना है.
हमारा जो सोसाइटी भी उनको साथ देना है, एंकरेज करना है, तब जाके यूथ आगे जाके कुछ होगा। तो जो हमारे ये प्राइम एज है, मेरे हिसाब से वो लॉस नहीं होना है। और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं यूथ को तो यही बोलूँगा कि स्टैंड अप करो, अपना डिसीजन करो। अभी का टाइम में आप लोग अगर नहीं करेंगे तो लाइफ में कब करेगा? इट इज़ द राइट मोमेंट। एंड सबसे बड़ा आपको स्टैंड अप करने का आपको वोटर राइट दिया हुआ है। अगर आप अच्छा कैंडिडेट चुनते हैं, आपका फ्यूचर होगा। आप अगर चुन नहीं पाएंगे, बाद में ये नहीं बोलना है कि सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सिर्फ कंप्लेंट नहीं करना है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आपके हाथ में ये 24 सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहेगा, स्पेशली यूथ के लिए। और हमारे कंस्टिट्यूंसी के पूरा अरुणाचल में देखिए, मोर देन आपका यूथ गिना जाए तो 60% वोटर यूथ है। यस, एग्जैक्टली सर। तो ये तो आप लोग इजीली किसी भी कैंडिडेट जो आपको सही लगता है आप चूज़ कर सकता है, लेकिन डिसीजन आपका होना है। और डिसीजन आपका कि हम तो यही बोलेगा कि आप लोग अपना पेरेंट्स को भी बताइए। अगर कोई कैंडिडेट आपको लगता है कि नहीं, न्यामो एते का कंट्रीब्यूशन है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो अच्छा है, तो अपने पेरेंट्स को भी बताइए। उनको भी बोलिए कि मेरा साथ दीजिए, ऐसा लीडर को साथ देना है। ये अपॉर्चुनिटी लेके मैं ये भी बोल रहा हूँ। Yeah, obviously. Okay, sir, you mean to say आप यूथ को एम्फसाइज इसीलिए कर रहे हैं कि यू हैव कलेक्टेड मैनी प्रॉब्लमेटिक रिपोर्ट्स इन द सेंस बहुत सारे यूथ प्राइम एज को गवा रहे हैं बिकॉज दे आर इनडिसाइसिव, दे कैन नॉट टेक कंक्रीट लाइफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो उसके कारण उसका ज़िंदगी में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो it is the responsibility of the youth to streamline themselves, and at the same time the parent should change they should support, they should encourage, and they should change the mindset. Just only recruiting government job is not the way forward. There is also ample opportunity to grab and stand on their own feet. Well, sir, we have now the last question. This is you have already mentioned of the aims and objective. Where are you focusing, where are you emphasizing, be it in education, health, road connectivity. We also have question, what will be your promises, your concrete or specific promises you would be accomplishing if you will be elected as the MLA of 30th Alo West Assembly constituency? I will say manifesto. Manifesto, promises, yes. See, manifesto and promises क्या होता है कि वो लास्ट मोमेंट में निकलता है। ओके, बेसिकली जैसे कि अगर आप कोई पार्टी लाइन से उतरा है तो पार्टी का भी अपना गाइडलाइंस होता है, तो उनको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। और मेरा तो ये है बोलने का, मैं पहले भी जैसे बोला, मैं विलेजेस वाइज डिफरेंट, सब विलेजेस का अलग अलग इशू है, सब गांव का अपना अपना इशू रह जाता है। तो सबसे पहले विलेज वाइज मैं प्रायोरिटाइज करूँगा कि उनका क्या एक इशू है। 1 विलेज 1 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, मैं ये करूँगा। अगर जैसे कि कोई विलेज बोलता है, ठीक है, कितना प्रॉब्लम रहता है, सबको तो एक बार में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं कोई मेजर विलेज को बोलूँगा, ठीक है, आप लोग का क्या है, अगर मुझे 24 में मैं इलेक्ट हो जाता हूँ, आप एक चीज़ पहला बोलिए जिसको मेरा फर्स्ट ईयर में मैं सॉल्व करूँगा। तो कोई विलेज बोलेगा हमारा लिए ये इंटरनल रोड इम्पोर्टेंट है, चलिए वो मेरा टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। कोई विलेज में बोलेगा कि वहाँ में ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, तो वो मेरा टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। किसी को बोलेगा कि कनेक्टिविटी का इशू है। 1 विलेज 1 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन में अपना पहला ईयर में सबको देना चाहूँगा। उसके बाद अदर्स जैसे कि जो डेवलपमेंट आता है, कुछ आइडियाज़ और भी है, तो उनको तो विथ टाइम इम्प्लीमेंट करते रहूँगा। लेकिन हाँ, इन्हें बॉर्डर से अगर आप बोला जाए, जैसे कि देखो मैं हर समय बोलता हूँ एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ आप देखा जाओ, एजुकेशन सेक्टर में इशू है कितना हमारे यहाँ। जैसे कि मेरे यहाँ भी दुकान में जॉब के लिए आता है, काफ़ी लोग बायोडाटा देता है, उसमें लिखा रहता है ग्रेजुएट है, कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। तो मैं बुला के बोलता ठीक है, कंप्यूटर में टाइप करो। बोलते कि सर भैया भूल गया, 6 महीना पहले किया था। दिस इज नॉट एजुकेशन। एक एप्लीकेशन लिखो बोलता है, लिखना मुश्किल हो जाता है। तो देर ये बेसिक कुछ तो गलत है बेसिक चीज़ में। तो वो आगे जाके क्या कर गया, आई थिंक उसको हम लोग करेक्शन करना है उन वे में। वो एजुकेशन लाइन में हो जाता है, और इन ए वे मेडिकल सेंस में बोलेगा कि देखो हेल्थ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेरी, कितना भी पैसा कमा लो, क्या भी कर लो,
हेल्थ तो ये है। एंड विलेजेस में क्या होता है कि उनको बेसिक हेल्थ का सर्विस चाहिए होता है। Exactly. अब ये नहीं कि आलो में मैं पूरा स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट लाऊं, वो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, जैसे कि कोई गांव में जो आलो हेडक्वार्टर से 10-20 किलोमीटर दूर है, उनको क्या है कि एटलीस्ट बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC. बेसिक चीज़ मिलो आपको, Yes. वो वेल इक्विप होना चाहिए। उसके बाद कोई सीरियस केस आता है वो आलो आएगा। और उसके बाद हाँ, आलो में भी वो नहीं होता है तो ईटानगर, गुवाहाटी, निगरिम्स रिफ़र करता है। तो ये चीज़ को एटलीस्ट मेरा जो कंस्टिट्यूंसी आलो 30 इसका है, मैंने देखा कि मेन टाउन से थोड़ा दूर में रह जाता है। तो मेरा Okay. ये रहेगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर उनका फुल्ली फंक्शनल होना है, डॉक्टर अवेलेबल होना है कम से कम, ये है। और हाँ, एक एजुकेशन में बोल रहा था, पर्टिकुलर अगर 30 आलो वेस्ट का अगर आप बोले तो उसमें क्या एक इशू है, मैंने देखा कि पहले हमारे यहाँ वो था, कहता है इंटरनल स्कूल वो था। Okay. जैसे कि पबडी में था हाई सेकेंडरी नहीं सेकेंडरी, तो क्या था कि सब गांव से वहाँ लोग पढ़ने आते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसे लाया, हर विलेज में आपका ये क्या था मिडिल स्कूल वगैरह बना दिया। तो गांव के लोग वहाँ पढ़ने अपना अपने स्कूल में आपको मिडिल स्कूल खोल लिया। लेकिन इंटेंशन गवर्नमेंट का कुछ ख़राब नहीं होता है। Okay. लेकिन अगर अप्रोच गलत है उसको करेक्ट भी करना है। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच गलत है। इन ए वे मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। Okay. लेकिन आप देखिए पहले क्या हुआ, हर स्कूल में वो लोग हर विलेजेस में स्कूल खोल दिया, ठीक है। Okay. लेकिन No student enrollment. नो स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर का वो नहीं है। Yeah. तो इन ए बेटर वे, जैसे कि जो पबडी में हमारा वो था स्कूल है, तो उनको अपग्रेड कर दो। और ऑलरेडी आई थिंक प्रोजेक्ट भी है मल्टी बेडेड हॉस्टल ना, Yeah, फॉर गर्ल्स एंड yes, बॉयज़, sir. वो बना दो। जैसे कि बागरा में भी आपका है और ये निकते में भी है। चलो उनको फोकस कीजिए, स्टूडेंट को रहने के लिए रेसिडेंशियल वो दीजिए, स्कूल दीजिए। और जैसे कि हाई सेकेंडरी का है, आलो हाई सेकेंडरी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जितना भी नियर बाई विलेजेस है वहाँ होता है। एक सिंपल ऐसे मेरा एनालिसिस गलत भी होगा, जैसा अभी मौका मिला है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। Yes, yours. अभी आप देखिए एलोंग हाई सेकेंडरी आलो में है मेन, ठीक है। पबदी हो गया, दारका हो गया, आंग हो गया, बगरा हो गया, वहाँ का जो यूथ हायर सेकेंडरी के लिए आते हैं Yes, sir. वो हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, तो कोई अपना रिलेटिव के वहाँ बैठते हैं, जिसका रिलेटिव नहीं है रेंट लेके बैठ रहे हैं। Yes, sir. तो वैसे ही मैं जब अपना विलेजेस में घूम रहा था तो बहुत गांव घर घर में जाके देखा, तो वहाँ सिर्फ पेरेंट्स हैं, यूथ कोई नहीं है। सब बोला कि नहीं वो आलो में रेंट लेके बैठा हुआ है। Okay. लेकिन अभी आप आलो जाके देखो, आलो का लोग क्या करता है, धारका तो आलो पैदल वॉक करता है, इवनिंग वॉक करता है। This is आलो का walkable, लोग sir. काबू तक वॉक करता है, पबदी तक वॉक करता है। Yes, sir. तो जब से रोड कनेक्टिविटी अच्छा हुआ, इतना दूर नहीं है। और तब क्या हो रहा है कि हमारे यूथ आलो में रेंट लेके बैठ रहा है, उसमें एक खर्चा है, खाना बनाने का खर्चा है, और वो दिन भर क्या कर रहा है, पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है। Okay. तो मेरा तो एक सोल्यूशन है, चलो अच्छा बस सर्विस बना दो, Yeah, yeah. वहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं है। आलो तो पबदी कितना दूर है, चलो हाँ आंग बागरा तक कवर नहीं कर पा, कम से कम दारका तक। तो nearest village areas. तो क्या होगा कि यूथ भी घर में रहेगा, अपना गांव में घर में रहेगा, उनका रेंट का खर्चा भी बचेगा, Yeah. साथ ही साथ पेरेंट्स का कंट्रोल में रहेगा कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उनको नज़र में रहेगा। Yes, sir. तो यही सेम प्रॉब्लम हम लोग का ग्रेजुएट लोग भी होता है। आलो में ग्रेजुएट हो गया, कंबा कॉलेज से हो गया, एसएफएस से हो गया, नेपट्यू से हो गया, नेपट्यू तो वो है, वहाँ से आके ईटानगर आता है, सब ईटानगर में रेंट लेके बैठता है कि गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना है। लेकिन इन रियलिटी आप देखा जाओ तो उनका बेसिक ही ठीक issue नहीं है। है। Yes, sir. तो वो सब हमें वहाँ से टैकल करना है। ये एजुकेशन सेक्टर हो गया। और हेल्थ सेक्टर में जब मैंने फिर मिक्सअप कर रहा हूँ, Okay, हेल्थ sure. सेक्टर में जैसे कि ऐसे बहुत लोग होता है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको CMA कार्ड होता है ना, बहुत लोग क्या होता है कि पहले मेडिकल में पहुँच गया, उसके बाद में पूरा ये कर रहे हैं, इतना पैसा जाएगा, आपका हेल्थ कार्ड कहाँ है? अरे हम तो हेल्थ कार्ड बनाए नहीं, Yes. मालूम है लेकिन नहीं बनाया, या फिर कुछ ऐसा है। तो इट इज़ अबाउट अवेयरनेस। Okay, yes. तो Awareness सिर्फ should be गवर्नमेंट की given. तरफ से आपका हेल्थ कार्ड नहीं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, ओल्ड एज पेंशन का स्कीम है, Yes. कैंसर का भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है।
तो ये विलेज लोगों को बताऊंगा, Yes. अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, हर एक विलेज लेवल के लोगों को मैं एनरोल कराऊंगा। ये मेरा एक हेल्थ सेक्टर में मेरा एक वो है, विज़न है। अदर्स तो इन्हें जनरल रोड कनेक्टिविटी ये सब तो चलते रहेगा। जब विद टाइम मैं अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज़ करूंगा, मेरा एक एक विलेजेस का क्या एम है वो भी मैं रिलीज़ करूंगा। Okay, yes, sir. Sir, so you are emphasizing on the restructure of basic education system because many of the students are not well equipped with the basic skills. So you will be endeavoring to restructure the education system so that all the students get well equipped with the basic skills for their future course. Yeah. Well, sir, you are also emphasizing on the health issues. That is also appreciable. Yeah. So, sir, with this, okay, thank you, sir. Sir, seems this 2024 assembly election is going to be a very good platform to restructure the political party or restructure their own candidate who will be working for the betterment of their own assembly constituency. Well, sir, since the MPL News channel is initiating this episode, the main objective and aim behind this to create a platform so that the candidate would be addressing the questions of all the questionnaires, especially we have been saying the legitimate voters. So this is a platform. Well, with that, with this episode, Know Your Candidate, Kaju Candidatum Henlaju, we had Nyamo Ate sir, and as per his conversation and this session, we can conclude that Nyamo Ate sir has already pulled up his socks to contest in this coming 2024 assembly election, and he would be emphasizing on education, health sector, and most interestingly, the main prioritized thing is youth empowerment. The youth empowerment, he has said that there is so many lapses. This is also the problem of their own parent who is not being able to guide them properly, and because of that they are not being able to stand on their own feet. And at the same time, in many education sector, there is need to restructure the system. Basic knowledge is not being provided, so it is to be kept on cognizance. And at the same time, there is also emphasizing will be given on the road connectivity. So with this, we would like to conclude this prolific conversation that we had with Nyamo Ate sir, who is again repeating the contesting candidate of 30th Alo West constituency. Stay tuned to MPL News for more update. Such interesting conversation, interview session will be carried off in next session with new episode, with new pass, and most interestingly about today's technical session, this conversation session it's something new. Why? Because the MPL News have been carrying out the pace of the existing MLAs, like we had interacted with the Nyamar Karbak sir, who is the Honorable MLA of 27th Lirmoba constituency, and Gokar Basar sir, who is the MLA of 29th Legislative Assembly constituency, and followed by Honorable MLA Kardonya Gyur sir and Kento Jinu sir, and many more to come. But this is a parts of its kind, because in this episode we are interacting with the person who was not into any political arena, but he is coming for the first time in our episode as an aspiring candidate. And thank you for being here as a guest, sir. Thank you so much. Thank you.